Good afternoon, friends. I am very much delighted that I have the honor on this auspicious day to introduce Khushi Pabri, AIR Rank 3 JAG exams, Judge Advocate General Exams of Indian Army. जैसा कि आप लोगों में से कईयों को जैग के बारे में नहीं पता होगा, मुझे भी ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो I will like to introduce to you Khushi Pabri, and before that I will like to introduce my friend Mukesh. Kindly come, Mukesh bhai. He is a fellow advocate in Rajasthan High Court and I will felicitate him. He is a proud father. Please welcome, give him a good applause. He is really a proud father. Now I will like to invite Khushi Pabri. She will enlighten you about the JAG exams. Khushi, please come, beta. Congratulations. Congrats. Thank you. It is really a very proud moment for herself and myself also, because we feel that one of our family members' daughter has joined the Indian Army. It is really a delightful. Now I will ask Khushi to come. Khushi, first of all, congratulations for being rank 3 women category JAG exam. Actually speaking, many of us do not know about JAG exam. Kindly tell us about this exam, how it is conducted, and is there any written exam, is there any interview, everything. Then I will ask you 2-3 questions which may ponder in the mind of several people. Thank you, sir, for felicitating me. And coming to JAG exam, JAG is basically Judge Advocate General. It is differently in, like, Indian Army, it is different, in Navy different, Air Force it is different. And right now I'm well aware that for Indian Army there has been notification out for men and women as well. There are 5 total vacancies, and for Navy also there are 2 vacancies, so you guys can apply there. And coming to JAG exam, basically this is it is an advocate as well as judge in Indian Army. We are the legal officer of Indian Army, the licensing between the Indian Army and the government. So there are court martials, as you may be aware that there are court martial, and the people who sit there are from the JAG branch only, and a general major. So basically they are judges also, and they are the advocates also of Indian Army, like basically the legal system of Indian Army. And JAG exam, for JAG exam you have to apply for CLAT PG. So you have to clear the CLAT PG. Cutoff is around 30 to 35 something, but to be safe you should score till 50. And for CLAT PG, I gave my CLAT PG in 2024, CLAT 2024. So I cleared that. I did not join for LLM. Instead, I came here for RJS, and I was preparing for RJS that time. I came to this coaching, and basically, like you guys also, I came offline. And sir told me about many, like, we study here, we get knowledge about it. So it is useful when you go for JAG also, because in interview they ask you about legal concept as well. So you should be well aware about legal concept. और जब इंडियन आर्मी में जाते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम इंग्लिश यूज़ करना पड़ता है. सो यू शुड बी वेरी गुड विथ इंग्लिश. लाइक कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए. डजेंट मैटर कि तुम कितना अच्छा इंग्लिश बोल रहे हो, तुम ग्रामेटिकली सही हो कि नहीं हो, डजेंट मैटर. तुम बस कम्युनिकेट कर सको इंग्लिश में अगले पर्सन को कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो. दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स. सो इंग्लिश के बेसिस पे मार्क्स नहीं मिलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पे मिलते हैं. और जैग का एक पहले क्लैट पीजी स्कोर होगा, उसके बाद में तुम्हें कॉल लेटर आएगा, उसके बाद में 5 डे का एसएसबी होता है. इन दैट एसएसबी फर्स्ट डे इज स्क्रीनिंग.
सो स्क्रीनिंग के टाइम पे अराउंड 150 टू 200 बच्चे आते हैं, एंड आउट ऑफ दैट लॉट only 39 students were selected in our batch. Like my SSB was in Bhopal. So 39 बच्चों में से भी 7 ही बच्चे सिलेक्ट हुए after the whole process of SSB, and only 2 people from SSB Bhopal got in merit. One is me and the other is my friend. So SSB में जब जाते हो तो स्क्रीनिंग होगा, वहाँ पे PPDT एंड OIR टेस्ट होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट. सो बेसिकली उसके अंदर ये होता है कि रीजनिंग आता है और दोनों तरह का रीजनिंग आता है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो थोड़ा बहुत वो होना चाहिए. और अगर इंडियन आर्मी में जाने का सोच रहे हो तो फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड बी फिजिकली वेरी एक्टिव. एंड आरजेएस की तैयारी कर रही थी तब भी एक्टिव तो रहना ही पड़ता है. बैठे बैठे कब तक वहाँ पे इतना मेंटल स्ट्रेस होता है, तो उसको एक्सर्ट करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फिजिकली एक्टिव हमेशा रहना. ऐसे मत करना कि बस पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं यार, तो हम नहीं कर पा रहे, हमें टाइम नहीं मिल रहा है. फिजिकली एक्टिव रहो, बिकॉज फिजिकल स्ट्रेंथ तो अच्छी होनी ही चाहिए ना. अगर फिजिकली बॉडी स्ट्रांग नहीं है तो फिर मेंटली क्या करोगे. उसके बाद में एसएसबी का फर्स्ट डे स्क्रीनिंग हुआ. सेकेंड डे साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, विच टेस्ट योर साइकोलॉजी, तुम्हारे मेंटल स्ट्रेस है. क्योंकि मेरे को भी था, जब मैं आरजेएस के लिए यहाँ पे पढ़ रही थी तो मेरे को भी हो रहा था यार आरजेएस में इतनी कम वैकेंसीज हैं, कैसे होगा क्या होगा. वो वहाँ पे दिखता है, तो तुम्हें थोड़ा सा काम होना पड़ता है, स्ट्रेस फ्री रहना पड़ता है, बहुत ही कामली वहाँ पे सब कुछ करना होता है. तुम्हारा सारा वहाँ के साइकोलॉजिस्ट इतने स्ट्रांग होते हैं, वो लोग तुम्हारी लिखी हुई हर बात से वो समझ जाते हैं कि इस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या थॉट्स हैं. तो वो थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए अपना. इसके लिए अपने को फिजिकली स्ट्रांग रहना होगा, फिजिकल कुछ वर्क करना होगा जिससे हम मेंटली बहुत ज़्यादा एक्सर्ट ना हो. और इसके बाद में साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद में 2 दिन होता है फिजिकल टेस्ट, विच इंक्लूड्स जीपी, विच इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज. तो तुम अगर तुम्हारी रीजनिंग स्ट्रांग है, तुम्हें मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, तभी तुम ग्रुप प्लानिंग कर पाओगे. ग्रुप को साथ में लेके चलना होता है, वहाँ पे इंडिविजुअलिज्म नहीं होता है. ग्रुप प्लानिंग में ग्रुप ही होता है. और ग्रुप डिस्कशन होता है जिसके अंदर देर इज लीगल का एक टॉपिक होता है. देर आर 2 ग्रुप डिस्कशंस, वन इज लीगल टॉपिक एंड अदर इज नॉर्मल टॉपिक. बिकॉज तुम जैक ब्रांच से जा रहे हो तो लीगल तो होना ही चाहिए. तो लीगल का जो यहाँ से मैंने सर से सीखा था, मैंने वहाँ बोला, तो वहाँ पे लोग मतलब वहाँ पे इम्प्रेस ही हुए हैं, तभी इतने नंबर दिए. तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं. तुम एसेज लिखोगे, विमेन एम्पावरमेंट पे मैंने एसेज लिखे थे, वहाँ मेरा आ गया बाय चांस, मेरे डिस्कशन के अंदर वही टॉपिक आया. तो मेरे पास वो फैक्ट्स थे जो बाकी लोगों के पास नहीं थे. उन लोगों ने रिसेंटली पढ़े थे, मैंने बहुत टाइम से तैयारी करी थी तो मेरे को पता था. उसके अलावा वहाँ पे आर्मी से रिलेटेड चीज़ें ऑफकोर्स आएंगी. पहलगाम अटैक रिसेंटली हुआ था तो वो चीज़ पूछी गई, उसके अंदर क्या वेपन्स यूज़ होते हैं वो सब पूछा गया. एक लेक्चरेट होता है जिसके अंदर तुम्हें 3 टॉपिक मिलेंगे, वन इज हार्ड, अदर इज मॉडरेट एंड अदर वन इज ईजी. डजेंट मैटर कौन सा टॉपिक पिक कर रहे हो, बट जो भी टॉपिक पिक कर रहे हो उसके अंदर तुम्हारी पकड़ होनी चाहिए. तुम एटलीस्ट एक्सप्रेस कर सको, तुम्हारे पास फैक्ट्स हों चीज़ों के, और रिलायबल फैक्ट्स हों. ऐसे नहीं कुछ भी बोल के आ गए, उनको पता है. तो वहाँ पे बहुत ही मेरा था, मैंने ई स्पोर्ट्स लिया था इन टूडेज टाइम, तो मेरे को पता था कि उसके अंदर क्या क्या आजकल न्यू चीज़ें आ रही हैं जो ई स्पोर्ट्स में यूज़ हो रही हैं. यूट्यूबर्स के काफ़ी नाम पता थे, तो मैंने वो एक डाटा दिया उनको, तो वो डाटा से वो लोग इम्प्रेस हुए. तो वेल अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. बस पढ़ाई 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 इज़ नॉट एवरीथिंग. सब कुछ होना चाहिए इक्वल प्रोपोर्शन में, बट पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके बाद में ये सब हुआ. इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में मुझसे पूछा कि आप क्या कर रहे थे, क्योंकि मेरा 24 में ख़त्म हुआ था कॉलेज, मई 2024 में, और ये मेरा था मई 25 में. तो बोले 1 साल क्या किया. मैंने कहा सर आरजेएस की तैयारी करी. तो बोले क्या तैयारी करी, कहाँ से करी, सब पूछा उनने डिटेल में. तो उनको पता है कि तुम क्या पढ़ रहे हो. वो बहुत ही नॉलेजेबल ऑफिसर्स हैं जो वहाँ पे बैठे हैं, तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं. अगर वो उस पोजीशन पे है मतलब उनको बहुत चीज़ें पता है. तो वो लीगल कॉन्सेप्ट में घुस के पूछेंगे तुमसे कि अच्छा ये उत्तराखंड में यूसीसी हुई, कौन से आर्टिकल में आता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे क्या व्यूज़ हैं. तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे क्या व्यूज़ हैं. बी क्लियर अबाउट योर व्यूज़ कि तुम्हें क्या बोलना है. वहाँ पे वो ये भी पूछेंगे कि इतने टाइम से जुडिशियल सर्विसेज कर रहे हो, एकदम से पाथ क्यों चेंज करना है. तो इंक्लाइनेशन अपना अपना होता है. मेरा थोड़ा सा ये था कि जॉब भी चाहिए, दूसरा ये था कि मेरे फादर जो है एडवोकेट हैं, वो वहाँ पे एएफटी है होता है, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल, उसमें भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो इनके पास में आते थे, मुझे पता था लोग कैसे हैं, तो मैं थोड़ा सा उनसे भी इंस्पायर हुई कि यार कितनी अच्छी लाइफ है इनकी, कितनी डिसिप्लिन लाइफ है.
तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती है, तुम किस तरह से अपना प्रेजेंट कर रहे हो व्यू। हो सकता है कि कई लोगों को मोटिवेशन इससे आती है कि हम लोग ट्रक को जाते हुए देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है वो देख करके, उससे भी मोटिवेट हो जाते हैं। तो बोलने का तरीका होता है और कुछ नहीं है। इंटरव्यू में वो बहुत डीप में भी जाके पूछ सकते हैं, आपकी फैमिली में भी घुस सकते हैं कि फैमिली का कैसा है, क्या है, तुम्हारे रिलेशंस कैसे हैं सबके साथ में, वो सब एनालाइज कर लेते हैं। मेरा इंटरव्यू मैक्सिमम शायद 8 मिनट्स चला होगा, विच वॉज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल। तो मेरे को बहुत डर था कि पता नहीं इतना छोटा इंटरव्यू लिया, कुछ भी नहीं पूछा, कोई ट्रिकी क्वेश्चन ही नहीं पूछा, बस ये पूछा स्पोर्ट्स में क्या खेला। तो कॉलेज के टाइम पे तुम स्पोर्ट्स में क्या खेल रहे हो, स्कूल टाइम में तुमने क्या स्पोर्ट्स में खेला, उन सब की लिस्ट होनी चाहिए। जब तुम्हारे को एक फॉर्म भरवाएंगे फर्स्ट डे, तो उसके अंदर सब डाल देना कि तुमने इस डिबेट में पार्टिसिपेट किया, इधर एक ये डांस कॉम्पिटिशन था, पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट, डजेंट मैटर कि तुम विन कर रहे हो लूज कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो मतलब तुम एक्टिव पार्टिसिपेंट हो, तुम बहुत ज़्यादा अवेयर हो अपने सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, तो वो चीज़ मैटर करती है। और तुम्हारी उसके अंदर ये भी देख लेते हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, तुम हार्ड क्वेश्चंस को कैसे डील कर रहे हो, तुम क्रैक कर पा रहे हो, कहीं तुम इमोशनल तो नहीं हो रहे कोई क्वेश्चन को आंसर करते हुए, वो सब चीज़ें मैटर करती है। फिर लास्ट डे कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके अंदर डिसाइड होता है कि तुम इन हो कि आउट हो। तो लास्ट डे कॉन्फ्रेंस हुई, 7 लड़कियां सिलेक्ट हुई, बाकी सब घर चले गए वापस। फ्रेंड्स भी बने, तो वहाँ फ्रेंड्स बनेंगे तुम्हारे अच्छे, बट ये याद रखना कि वो कॉम्पिटिटर्स भी हैं। तो वहाँ पे फ्रेंडशिप में वो लोग डिसाइड करते हैं कि अरे यार सुन, ग्रुप में ये करेंगे, वो नहीं करना। तुम्हें अपना इंडिविजुअलिज्म दिखाना है कि हाँ मैं हूँ कुछ, मेरे व्यूज़ हैं तो मैं रखूँगी। तो यही सीन होता है। उसके अलावा मेडिकल होता है उसके बाद में। मेडिकल तुम्हारी थ्रू आउट पूरी बॉडी का मेडिकल होता है, ब्लड टेस्ट से लेकर के एक्सरे तक। और सब लोग टेस्ट करते हैं, सर्जन तक टेस्ट करता है कि तुम्हारे नॉक नीज नहीं होने चाहिए, और बहुत सारी फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ें होती हैं। और यूरिन टेस्ट होता है, एक्सरे होगा, तुम्हें बहुत वो करेगा, मेडिसिन वाला टेस्ट करेगा, हाइट वेट अकॉर्डिंगली होना चाहिए, क्योंकि वेट का एक क्राइटेरिया होता है अकॉर्डिंग टू हाइट, वो रहना चाहिए, ओवर वेट नहीं होने चाहिए हो। तो वो सब चीज़ें मैटर करेंगी वहाँ पे। तो वो देखना होता है, ये प्रोसेस में हमें ये भी चीज़ देखनी है। और अभी जैसे 3 ईयर का गैप आ गया है, 3 ईयर का प्रैक्टिस बोल दिया है, तो वी शुड थिंक अबाउट अदर ऑप्शंस। और ऐसा नहीं है कि तुम अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो तुम और कुछ नहीं कर सकते, सब कर सकते हो यार। मैंने भी करी 1 साल जुडिशरी की तैयारी, यहाँ आती थी, ऑफलाइन आती थी, सुबह शाम दोनों क्लासेस भी ले रही थी, बट साथ साथ में और भी चीज़ें देख रही थी, क्योंकि एक चीज़ पे फोकस अभी ये नहीं है कि बस तुम एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हो। तैयारी करो, अच्छे से करो, वो अपना मेन गोल है। आसपास में और जो ऑप्शंस मिल रहे हैं तुम्हें, अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो ट्राई टू ग्रैब दोस अपॉर्चुनिटीज़, क्या पता तुम्हारा लक वहाँ पे काम कर जाए। और इधर की नॉलेज तो काम आएगी। जैसा सर बोलते हैं सैनिक का जीवन, साधु का जीवन और स्टूडेंट का जीवन सेम होता है, तो वो चीज़ एक्चुअली होती है। डिसिप्लिन जितना रहेगा ना, उतना लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। और हमेशा मोटिवेटेड रहो यार, होगा सब होगा, अच्छा ही होगा। इतनी पढ़ाई करी है, पढ़ाई तो सभी करते हैं ना, कोचिंग में आके एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हाँ ठीक है हमें ये ऐसे पढ़ना है। जैसे सर बोलते हैं कि आज करना है, आज तुमने ये पढ़ा दिया, चलो जाके रिवाइज कर लो, बस इतना ही है। तुम रिवाइज करोगे, अभी मैंने प्री का भी दिया पेपर, तो मैंने बस वो रिवाइज कर रखा था, मुझे बहुत चीजें उससे याद थी, मुझे कॉन्सेप्ट सर के वो स्टोरीज से याद थे कि हाँ अरे हाँ वो वाली स्टोरी थी, मुस्लिम लॉ में ये बताया था, मूता मैरिज ऐसे बताई थी, तो मुझे वो चीजें याद थी। उससे मेरे को पनिशमेंट भी याद थे, उससे मेरे को चीजें याद थी, तो वो ऐसे याद रहेगी। लगेगा स्टोरीज बोरिंग है, मेरे को भी लगता था, मैं इधर ही बैठती थी फर्स्ट रोज में, तो मेरे को लगता था यार कितनी बोरिंग है, नींद भी आ जाती थी। पर सुनते रहो, अच्छा लगता है, बाद में याद आता है। जब रिवाइज करोगे ना तो याद आएगा सब कि हाँ ये ऐसा बताया था, वैसा बताया था। और साथ साथ में अपने अपने नोट्स भी बनाते जाओ। और ऐसा मत करो, यहाँ पे मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा, सर भी बोलते हैं कि तुम्हें नोट्स बनाने, तुम यही बनाओ, तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, तुम जल्दी लिखने की प्रैक्टिस कर पाओगे, मेंस के टाइम पे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नोट्स यही बनाओ, ऐसा नहीं कि यार रफ बनाया घर जाके फेयर कर रहे हैं फिर उसके बाद पढ़ेंगे, तो तब तक इतना आलस आ चुका होता है ना, तो ऐसा लगता है छोड़ो यार कल करेंगे। तो वो नहीं करना है, मतलब करा आज करा, कर दिया खत्म, ऐसे करना होता है। और वीक एंड में तुम रिवाइज कर लो और एक ऐसे लिख लो, बस इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो ये चीज़ें बाकी जगह काम आएगी। तुम कोई भी, जैसे अभी एक कोल इंडिया का पेपर हुआ था, उसमें यहाँ की लीगल नॉलेज, यहाँ पे सर ने जो पढ़ा है वो सब आता है। तो कोचिंग तो लेने में अगर तुमने ली है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हें सब कुछ याद रहेगा, सब कुछ एकदम अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। तो वही है, बाकी तो कुछ नहीं है इतना। जैसे अपॉर्चुनिटी दिखे तो ले लो, अप्लाई करो सब जगह, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, कोचिंग के साथ साथ बहुत चीज़ें कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।
मैडम ने बहुत ही अच्छे विस्तार से सारी बातें, आई थिंक ऑल योर क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड. ठीक है, देन वी विल गिव हर ए गुड क्लैप. थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स.